Okay. I hope everybody will pass semester 1 and you will come to semester 2. If you get a drop, if you fail in 5 subjects, you will get a drop. So you will remain in semester number 1. By assuming that you will pass and come in second semester, we will start or commence this particular session. By assuming that everybody will pass. I hope you will pass. So the subject is professional skills. Already I have given you one video about its orientation. Have you gone through that video? Yes or no? I know that you haven't gone through. Let me brief you a bit about it. For 50 marks, professional skill, this particular course is prescribed. Unfortunately, there is no board examination. When I say unfortunately, I do have my own explanations for that. I don't know when the experts designed this curriculum, they expected you to perform practicals. They have given you full-fledged 5 chapters in syllabus. They expect you to perform more than 15 practicals. They have given you everything, the scheme and all. But they haven't given you theory sessions. Now, every batch will get hardly 2 hours a week to perform. One batch will have almost maximum 21 students. 21 students and you have got hardly 120 minutes. So if you divide that, you get hardly 3 to 4 minutes to perform in a week. Now, I don't know how these experts expect the trainer to first of all teach you what to perform and how to perform, and then you all 21 people will perform within that 2 hours, wherein your background, most of you are from Marathi medium. Yes or no? You have the constraints or the restrictions of language. You all know that and you all agree. Even if you are from semi-English or English medium, you need to have content to perform. Yes or no? Imagine that I am very good expert cook. I can cook any food item. But I need content, no? I need some spices, Indian spices. And then only I can execute my skill and all. Similarly, even if you are from English medium or maybe semi-English medium and you are good in English language, in order to perform the activities or the practicals, you need to practice, right? And you need how to perform and what to perform, this particular guidance. And I don't know how these people are expecting you to directly come and perform. They have their logic that we should teach each and every batch. See, I have got 6 batches plus 3, यानी 9 batches. And 9 batches को मैं वही चीज बार बार पढ़ाऊंगा, वही चीज बार बार मुझे बताना पड़ेगा. Whereas अगर एक भी theory sessions रख देते ना, एक लेक्चर भी रख देते, तो within one lecture एक प्रैक्टिकल किस प्रकार परफॉर्म करना है हम लोग तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देते थे, तुम लोग नोट डाउन कर लेते थे, प्रैक्टिस करके आते थे घर से. और यहाँ पे 3 to 4 मिनट्स हर एक बंदा, हर एक पार्टिसिपेंट ने अच्छे से अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिया होता है. यू वुड हैव डेफिनेटली गॉट गुड कॉन्फिडेंस. अब क्या होगा? In order to explain what you are supposed to do, I will take 30 minutes and you get hardly 1.5 hours to perform. And within 1.5 hours to perform, how will you perform? It will again delay. You will go home, you will practice, you will come together, you will practice, you commit errors, you time it, and then you come in next practical. And sometimes you forget the things. Within 7 days, anything is possible. And that is how the complete hodgepodge is created out of this particular subject, which is of prime importance for every professional. And I know that you all would be the professionals in future. Tragedy है, लेकिन हमें अभी निभाना तो है. हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए अगर आपको बनना है तो अच्छे बॉस बनो, पॉलिसी मेकर बनो. क्योंकि पॉलिसी मेकर अगर हमारे ऊपर है तो हम कितना भी टैलेंटेड हो, नीचे कोई फायदा नहीं होता. हमें बैल की तरह काम करना ही होता है. That's not the topic of discussion today. So, the first practical that you are supposed to perform is communication process and cycle with live example of your life. But before you come up with your performance, first of all, you should know what is meant by communication.
Any idea about communication? Have you heard this particular word Yes. somewhere? Yes. What is it? Just share. Communicating with different people. So Alright, communicating with different people. What else? Exchanging ideas. Exchanging ideas. Good. Or Share of information. sharing information. What am I doing right now? sharing thoughts. I'm sharing my information, the things that I have studied somewhere, right? Or by experience I have gained the knowledge, the same knowledge and the information is being shared right now. Fine? So this is also a live example of communication process or cycle. Fine? So communication is nothing but sharing your ideas, your views, your opinions, your imagination, solutions with one another or with others. But when you share, you follow certain principles. Certain principles. Now, what are these principles? You all are comfortable only in Marathi and Hindi and English. If I start speaking in Urdu or maybe in Telugu, Malayalam, will you be okay with that? No. So what am I supposed to understand before I share the information? Of course I want to share the information, but first of all I should understand and take into consideration the audience who is sitting in front of me. Audience means number one, age and exposure of that audience. अगर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करना है, तो मैं एकदम टेक्निकल लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करूंगा, भले उनकी मदर टंग इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उन्हें समझ में आएगा. सो एज अ सेंडर मुझे वो सब बातें ध्यान में रखनी है कि सामने वाला जो है, जिसके साथ मैं बात करने वाला हूँ, जिसके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, इज ही और शी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. And accordingly I should modify the message, the kind of language, the kind of channel, the kind of method that I would be using to pass the information. मग आपल्याला इंजिनियर लोकांना हे कम्युनिकेशनची डेफिनेशन शिकण्याची आवश्यकता काय? एक तर तुम्हाला रिटन पेपर नाही आहे, सगळे इंटरनल असेसमेंट आहे. 25 मार्कांचे तुमचे हे प्रॅक्टिकल्स तुम्ही जे परफॉर्म करणार आणि जर्नल जे लिहिणार ते, आणि 25 मार्कांची तुमची फायनल प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन होणार आहे. जे काही प्रॅक्टिकल्स आपण 12 प्रॅक्टिकल्स आपण करणार आहोत, त्यापैकी 2 प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला परफॉर्म करायचे आहेत. तुम्हाला चांगला परफॉर्मन्स असला, तुमची टायपिंग व्यवस्थित असली, ड्राफ्टिंग व्यवस्थित असली, तुम्हाला मार्क्स मिळतील. फक्त 50 मार्कांसाठी या विषयाकडे बघायचं नाहीये. अँड लेट मी टेल यू, हा असा कोर्स आहे की तुम्ही जर खरंच सिन्सिअरली केला तर तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल इतका हाय आणि अप असेल की तुम्ही सेकंड सेमिस्टर ऑनवर्ड्सच स्वतःला चांगले इंजिनियर समजायला सुरुवात करा, प्रोव्हाइडेड यू फॉलो ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स अँड परफॉर्म ऑल द ऍक्टिव्हिटीज सिन्सिअरली. लँग्वेज इज नॉट अ बॅरियर. लक्षात घ्या, लँग्वेज, आपल्याला इंग्रजी लँग्वेज येत नाही, दॅट इज ॲब्सोल्युटली फाईन. स्लोली अँड ग्रॅज्युअली यू विल लर्न इट. फक्त आपली ॲटिट्यूड अशी डेव्हलप झाली पाहिजे की माझ्या डोक्यात जे विचार आहे ते समोरच्याच्या डोक्यात जसेच्या तसे उतरवणं म्हणजे कम्युनिकेशन. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम करायला जाल किंवा तुमची स्वतःची कंपनी असेल, त्यावेळेस तुमच्या डोक्यातल्या कल्पना ॲज इट इज समोरच्याच्या डोक्यात जर का तुम्ही उतरवू शकला तर तुम्ही चांगलं कम्युनिकेटर आहात. आणि म्हणून आपल्याला हा कोर्स प्रोफेशनल स्किल शिकायचा आहे. आणखी एक सोपं उदाहरण देतो जे की मी नेहमी देत असतो. जेव्हा तुमचं लग्न होईल, मोस्टली बॉयज, तुमच्या डोक्यातले विचार तुमच्या बायकोच्या डोक्यात जसेच्या तसे जर का तुम्हाला उतरवता आले एका पहिल्या प्रयत्नातच, तर तुम्ही ग्रेट कम्युनिकेटर आहात. It's been last 18 or 19 years I have been training the students in this particular subject, but even today I have failed to do so in first attempt. So you can understand the importance of this subject. Jokes apart, besides professional life, your personal life is also affected if you are not good in communication. Yes or no? Take a simple example. Simple. गर्दी आहे खूप, लोकल मध्ये खूप गर्दी आहे, 3 लोक ऑलरेडी बसलेले आहेत, तुमच्या जवळ 10-15 किलोची पिशवी आहे, तुम्हाला बॅग ठेवायला कुठे जागा नाही आणि 4थी सीट ऍडजस्ट होऊ शकते. कसं बोलाल त्या व्यक्तीशी जो थर्डला बसलेला आहे त्याच्याशी? फक्त त्याच्याशीच बोलाल की आणखी जे 2 बसलेले आहेत त्या कॉर्नरला त्यांच्याशी पण बोलाल? काय बोलाल आणि कसं बोलाल? जस्ट टेल मी. जस्ट इमॅजिन, शुभम हे असले बसलेले,
येथे तुम्ही आला, मला तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची, कोण येईल वरती, काय बोलाल आणि कसं बोलाल? Just give it a try. I think it is live example, right? And every day you थोड़ा must be सरका है facing ना। it. थोड़ा सरका। शांति शांति से बोलेंगे क्या बोलेंगे? कि प्लीज आप थोड़ा साइड हो सकते हैं शांति से बोलेंगे कि प्लीज आप थोड़ा सा साइड हो सकते हैं आई आल्सो वांट टू से और कोई बोलना चाहेगा? कैसे बोलेंगे? रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। क्यों बात करेंगे रिस्पेक्टफुली? इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगा। हमारा इंटेंशन क्या है बिहाइंड कम्युनिकेशन? टू गेट द Seat. फोर्थ सीट, राइट? अगर आप उसको बोलेंगे ए उधर जाना, देगा वो जगह, आप उसके ईगो को हर्ट कर रहे हो। और ईगो ये इतनी खतरनाक चीज है, छोटे बच्चों में भी रहती है, ऐसे देखता है आपकी तरफ, देखा होगा आप लोगों ने। तो आपका कम्युनिकेशन कम हो रहा है एज ए सेंडर। आपने 100% सिंसियर एफर्ट करना है ताकि मेरे दिमाग में जो है वो सामने वाले के दिमाग में मैं उतरूं, पूरा 100% देना। 100% देने के बाद भी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा इसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि सर प्लीज जस्ट बिट मूव सो दैट आई कैन सिट ऑक्युपाई दिस, थोड़ा सा सरकिए ना सर, बहुत बहुत हेवी है, मैं बैठ जाऊं क्या यहाँ पे? पूरा 100% दिया, लेकिन ये तीनों बंदे आ रहे घंटे हैं और नहीं यार नहीं बैठने देंगे तुझे। कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जगह मिली क्या? दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड द रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा सरकी यार, मुझे बैठना है, हेवी हो रहा है काफी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसके साथ है? सेंडर के साथ है क्या? नहीं। किसके साथ है? रिसीवर के साथ है। तो तुम लोगों को ये भी तय करना पड़ेगा कि मैंने एज अ सेंडर 100% एफर्ट दिया है ताकि मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो, लेकिन ये सेंडर की इशू है, तो ये उसके साथ प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। टू सम अप, सेंडर के साथ प्रॉब्लम हो या रिसीवर के साथ प्रॉब्लम हो, अगर जिस इंटेंशन से तुम लोगों का कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो इंटेंशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं बैरियर है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल है जो कि आपको दूर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जब बन जाओगे आप लोग, समझो आपका खुद का एक आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, आपको वो बेचना है फेस टू फेस ऑनलाइन। हर बंदा जिसके साथ आप बात करोगे उसी इंटेंशन से बात करोगे कि मुझे वो सॉफ्टवेयर सामने वाले को बेचना है, तो आप उस सॉफ्टवेयर की जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं सब बताओगे उसको, लेकिन फिर भी वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये किस पर डिपेंड करता है? उस पे। लेकिन एज अ सेंडर आपने आपका 100% देना है। इज दैट क्लियर? सो कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेस करने के लिए ये दोनों लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर, राइट? तो ये जो रिसीवर है और सेंडर है इनके काम क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप कि द कम्युनिकेशन वर्ड इज क्लियर टू यू नाउ। There are so many definitions given by the experts, but we are not going to look into. It is simple exchange of ideas, thoughts, feelings, views, imagination. Right? तो सेंडर के काम क्या है? सेंडर मतलब क्या? जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। और आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन द womb of the mother. Boys, you are not lucky enough to understand this. Only girls and females can understand how the fetus and the mom communicate. In Indian mythology, Mahabharata, there is one story wherein Abhimanyu listens the story when Krishna tells how to break open the Chakravyuh on the battlefield. When Krishna narrates this, Abhimanyu is in the womb of his mother. And he understands, Abhimanyu understands how to break open Chakravyuha. This is one of the techniques in the war that the people use. And Kaurav army, when Arjuna was not around, he was just searching for Jayadratha and all. He was busy somewhere else. Kaurav army, they formed the Chakravyuh. And it was impossible to get in. No warrior
in the army of Pandavas could break that particular Chakravyuh, which was planned by Bhishma Pitama and Dronacharya and all these people. They were very expert in that. And only Sri Krishna and Arjuna knew how to break open that. But Arjuna was busy, and you know that who was the person looking after the chariot of Arjuna? Sri Krishna. So both of them were somewhere else. Now it was very tough time, and no warrior could break open that particular Chakravyuha. So it was Abhimanyu who came forward. He said that I know this story. I know how to break open the Chakravyuha. Right? So he breaks open the Chakravyuha, kills the Kaurav Sena, but he is trapped Yes. in that Chakravyuha. महाराणा पकड़. And he could not come out of that trap. And he was ruthlessly assassinated. Yes. Ruthlessly. Brutal. When I saw the picturization in the old Mahabharata, every part of his body was pierced with the help of swords. That was the hate behind killing Abhimanyu. Actually, the hatred was for Arjuna, because Arjuna was undefeated. Only Karna had that kind of skill to defeat him, but you know how the Sri Krishna played the role in between. Yes. The point is, Abhimanyu knew only half of the story. So the communication starts in the womb of the mother. Problem क्या हुआ था उस वक्त? By the time Sri Krishna could complete how to come out of that Chakravyuh, So bad. his mom slept. And because of that, the fetus had to sleep by default. And Abhimanyu did not understand how to come out of that particular Chakravyuh, and he was ruthlessly assassinated. Right? And then, you know, Jayadratha, how he was searched and killed, and how the sun god was hidden or covered because of the Chakravyuh of Sri Krishna and all. I think you must have gone through the Yes. story of Mahabharata. Do read them. My point is, it starts in the womb of the mother, and where does it end? It ends when you die. जब कब्र में दफनाया जाता है ना, तब भी हमारी बॉडी ये कम्युनिकेशन करती है कि मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं अल्लाह को प्यारा हो गया हूँ, राम नाम सत्य हो गया है, मैं मर गया हूँ. लेकिन वो कब्र दिखाती है, उस पे एक बोर्ड लगा होता है कि ये राम पाटिल की कब्र है, यहाँ पे राम पाटिल को जलाया गया है. You know the tomb and all. So there it ends. अभी तुम लोग सिर्फ बैठे हो साइलेंटली, लेकिन फिर भी आप बातें कर रहे हैं. कैसे बातें कर रहे हैं हम लोग? Because of nodding, facial expressions, eye contact. Some people, they agree with me, he is somewhere else. His facial expressions are telling me. So that is also a communication process. That is also a communication process. तो तुम लोग जब इंजीनियर बन जाओगे, समझो आपकी टीम यहाँ पे बैठी है, आप जब उनके साथ उनको देखोगे, बात करते समय उनके चेहरों की तरफ देखोगे, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आप जो भी बात बोल रहे हो ना, किसको समझ में नहीं आ रही है. किसी बंदे को समझ में आ रही है, दैट इज वेल एंड गुड. लेकिन जिसको समझ नहीं आ रही है ना बात आपकी, उस पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. पूछो क्यों? Why? क्योंकि जब आपकी टीम का एक मेंबर, जिसको आप जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है या वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो जो फंक्शन करेगा, ऑन जॉब करेगा, तो वो मिस्टेक्स करेगा. और वहां पे स्कूल या कॉलेज रहता है क्या कि मिस्टेक करो, चलो ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर होता है क्या वहां पे? लाखों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा. 10 साल आपको फ्री में काम करना पड़ेगा उस कंपनी में. इसीलिए जिसको समझ में नहीं आ रही आपकी बात, आपको इस प्रकार बात करनी होगी कि वो समझे. That is what communication is, and in that, from that point of view, we have to learn it. 50 मार्क्स लेने, इसके लिए प्रोफेशनल स्किल सीखना है तो नो, बिल्कुल नो. समझ में बात? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहला कौन सा पार्ट होता है? सेंडर. तो सेंडर के काम कौन से होते हैं? आइडिएशन. अभी आइडिएशन क्या है पता है? दिमाग में एक आइडिया या थॉट जनरेट होना. राइट? अभी मैं कुछ करता हूं, मेरी एक्शन देख के आपके दिमाग में क्या थॉट आया, वो आपको बताना है. लेट मी कंप्लीट द एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल.
Did you see that action? हम्म. Now tell me. Honestly. वॉच खराब झाली, ओके? और वॉच साफ केली, ऑलराइट? टाइम बघितला. टाइम बघायला. टाइम बघितला. हे थॉट्स का तयार झाले तुमच्या डोक्यात? ऍक्शन. या सिच्युएशन नुसार बाकीच्या लोकांनी कोणीच बोललं नाही, परंतु तुमच्या डोक्यामध्ये जे थॉट्स तयार झाले ते आम्हाला कसे कळले? तुम्ही बोललात म्हणून, राईट? तुम्ही ईमेल का नाही लिहिला की सर, as per the action that you showed and the way you played with your wristwatch, this is what my observation and this is the thought that occurred in my mind. I am just putting it in quotation mark. I think you are simply cleaning your watch. You are sincerely Manthan. आपने मेल क्यों नहीं किया? लेटर क्यों नहीं लिखा? Exactly. क्योंकि listener and the speaker, both of them are face to face. Both of them are face to face. हालांकि आप ईमेल से भी मुझे बता सकते थे, व्हाट्सएप मैसेज से भी बता सकते थे, कॉल करके भी बता सकते थे, लेटर लिख के भी बता सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया? बात करना. रीजन? सेव टाइम. Both are present. Receiver and the sender, both of them are present. जिससे टाइम भी बचेगा. Obviously, what he said, that is absolutely correct. So आप जब भी प्रोफेशनल बनोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या मैसेज देना है, किसको देना है, कौन से टाइम पे देना है, क्या हालात है, अकॉर्डिंगली मैं कौन सा चैनल इस्तेमाल करूं. लेटर लिखूं, फोन का इस्तेमाल करूं, व्हाट्सएप मैसेज करूं, मेल करूं, सीधे जाके बात करूं फेस टू फेस. Depends over the urgency of the message and availability of the channel. कळत है? Now this ideation also depends. एक दूसरा सिचुएशन देता हूँ. समझो तुम लोग नए कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन के लिए गए, राइट? वहां पे जाके आप लोगों ने देखा कि एक सुंदर लड़की फरारी कार लेके एंट्री कर रही है कैंपस में. Boys and girls. Sincerely, just imagine the scene. आप कॉलेज में हो, एक सुंदर लड़की फरारी कार लेके कॉलेज के कैंपस में आ रही है. अभी लड़कियों के दिमाग में क्या विचार आएंगे या क्या थॉट्स आएंगे वो शेयर करेगी और आप लोग शेयर करोगे. Just imagine. Shall I reproduce the scene in front of you again? No. No. बच्चों, लड़कों को कुछ समझ गया है. Girls, see, this ideation depends on so many factors. So many factors. काय बोलणार? बताओ. संदेश पहिले बोल. संदेश. शोइंग ऑफ ऑन आवर डैड्स मनी. हाँ, अरे ये लड़की अपने बाप के पैसे दिखा रही है. ऑल राइट, चलो ठीक है, कितना अच्छा बच्चा है. और मेकअप का कमाल. ओके, तो अच्छे घर की दिख रही है. अच्छे इन द सेंस रिच. ऑलराइट. और किसी के भी मन में लड्डू नहीं फूटेगा. नंबर दे जाएगा. Are you all normal? क्रैकलिंग साउंड ऑफ V10. हाँ, एक एडवर्टाइजमेंट है आपको, देखा मन में लड्डू फूटा. नहीं, मैं अगर रहता तो मेरे मन में लड्डू ही फूटता, because I am normal, I know that. लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? To save my face and your face, अच्छे करके दिख रही है. But actually मैं बताओ, honestly बताओ, सुंदर लड़की दिखने के बाद कोई फरारी को भी नहीं देखेगा यार. नहीं सर, नहीं. हम Yes or फरारी no? को देखेंगे. No. Yes or no? No. No? गाड़ी चाहिए. अच्छा, गाड़ी चाहिए. Attitude matters. कि मुझे फरारी देखनी है, लड़की नहीं, right? क्योंकि फरारी करोड़ों में आती है. Fine? Point is, depending over your attitude, the ideation or generation of idea depends. अभी लड़कियां बताओ, क्या ख्याल है? फरारी देखेंगे, राइट? लड़की को नहीं, वो जे फीलिंग नहीं आएगी. एक तो सुंदर, ऊपर से फरारी में बैठी हुई है. यस और नो? आएगी. मैं अगर लड़की होता तो डेफिनेटली यही फीलिंग आती पहले. ओ, एक तो और ऊपर से. यस और नो? सो आपकी सोच, आपकी अपब्रिंगिंग,
इस पे भी डिपेंड करता है आइडिएशन, जनरेशन ऑफ आइडिया। अभी ये जो जनरेशन ऑफ आइडिया है ये आपको काम कहाँ आएगा? आप जब भी काम करने जाओगे किसी भी कंपनी में या आपकी खुद की कंपनी होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आएगी, यस और नो? तो वो सॉल्व कैसे होगी? थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग। और थिंक किसको करना पड़ेगा? आपको और आपके टीम मेंबर्स को। और एक बंदा जैसे सोचेगा वैसे ही सोच सबकी होगी क्या? नहीं। तो आपके मन में ये जो आइडिएशन या जनरेशन ऑफ आइडिया या बर्थ ऑफ आइडिया जो आता है वो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देगा। फिर आप आपके दिमाग और एक्सपीरियंस लगा के उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करोगे और वो अप्लाई करोगे और आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हल होने को मदद मिलेगी। यस और नो? फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू लर्न प्रोफेशनल स्किल। समजते? आणि तुम्हाला परफॉर्म पण तसंच करायचं आहे. When you perform, you have to tell me all these things. Besides telling me the live example of your life somewhere, you have to come up with, first of all, you will explain, you will talk about the live example, right? जैसे कि मैंने अभी बोला, a beautiful girl entering the college campus in a Ferrari. So this is what a live example of your life. And you have to tell me about the example first of all, and then you have to talk about all these things. In this particular scenario, communication process, this person is the sender, the idea is generated. Now once the idea is generated, what you did? You spoke. So the abstract idea converted into a concrete form, a message. A message. Abstract idea दिमाग खोल के देखेंगे कि अपन हाँ ये ख्याल है क्या सर? ऐसे देखेंगे कि अपन नहीं, हमें बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा या जताना पड़ेगा। और एक बात, आपको बहुत भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी है, दिमाग में कौन से ख्याल आएंगे? फरारी के? किसके ख्याल आएंगे? खाने के। खाना। और अगर किसी ने समझो वड़ा पाव लेकर आया, देव मानो। वड़ा पाव का एरोमा मतलब you start salivating, yes or no? Yes. तो उस वक्त किसके पास है? 50 रुपए का नहीं 100 रुपए भी दे दूंगा मैं, क्योंकि भूख लगी है, क्योंकि भूख लगी है। So this is how you feel. और एक सिनेरियो देता हूँ, थोड़ा सा क्रॉस है। किसी ने पाद मारी, हादिर। ख्याल क्या आएंगे दिमाग में उसको? क्या मुझे लगता है ये बदबू वड़ा पाव की नहीं बिरयानी की है। ऐसा हो सकता है, ये भी दिमाग में आ सकता है। या फिर किसने पाद मारी, ऐसे देखते हैं, जिसने पाद मारी है तो वही ऐसे देखने लगता है, किसने पाद मारी, and then the hilarious episode unfolds. You all know that, yes or no? ये आपका आइडिया जनरेशन डिपेंड करता है on so many factors. आपको from the point of view of generating the solutions, generating the ideas on job, इस point of view से इस point को आपको समझना है। Is that clear? Ideation समझ में आया? अगला, channel. Channel मतलब क्या? It's a vehicle through which you pass the message. जैसे मैंने आपको कॉल किया, तो कौन सा व्हीकल इस्तेमाल किया मैंने? फोन। मोबाइल। सो अगर काफी अर्जेंट है, सामने वाला मेरे पास नहीं है, वो कहीं अमेरिका में बैठा है, तो मैं क्या करूंगा? फोन का इस्तेमाल करूंगा और उसको बात करूंगा उसके साथ। सामने बैठा है तो फेस टू फेस। आप सब लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सामने रेड सिग्नल दिखा तो रुकोगे, ब्रेक मारेंगे। सो व्हिच इज द चैनल? ब्रेक। सिग्नल, रेड सिग्नल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट हो गया तो हम तो तैयार ही रहते हैं, देखा होगा आपने, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ दैट हरी। हमें लगता है कि हम अंबानी है, अगर 2 मिनट रुक जाएंगे तो हमारा 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, बाद में हाथ पैर टूट जाते, 6 महीने हॉस्पिटल में आना और बाप का पैसा खत्म। 6 महीने अगर हॉस्पिटल में रहोगे तो बाप का कम से कम 50-60 लाख रुपया तो चला गया, दोनों किडनी बेचनी पड़ेगी तब जाके पैसे आएंगे। इसलिए शांति से हमेशा ट्राई करो। आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, जो कि मेरी एक बुरी आदत है, मैं नाश्ता करते समय टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेता हूँ।
इतना बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ नाश्ता करते समय पढ़ लेता हूं, मतलब आई सिंपली फ्लिप थ्रू द मेन पॉइंट्स, आई जस्ट स्किप। 9 से 12 लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण मर गए और सब यंगस्टर्स है, 19 से लेके 24 आयु है। कितनी? 31st। अभी मुझे बताओ कोई सिंगल चाइल्ड होगा? यस और नो? यस। अभी 24 साल तक जिस माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, अपना प्यार दिया है, वो आपने 2 लीटर दारू पी के ड्राइव करके खत्म कर दिया। अब वो बेचारे क्या करेंगे? ये जो आपकी लाइफ है ना, ये आपकी नहीं है, आपने किसी ने दी है आपको, तो उसकी जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो मन में रखनी चाहिए कि व्हेन आई एम ड्राइविंग आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू माई सेल्फ, आई बिलोंग टू माई पेरेंट्स and they have invested time, money, lots of efforts, lots of emotions and lots of love. Yes or no? So take care of yourself before accelerating. Think about your parents. 24 साल का बेटा या बेटी अगर मर जाती है तो वो दर्द तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें तब पता चलेगा when you will lose someone. इसलिए take care of yourself. I know that this is not a topic of discussion because I was disturbed by this particular scenario. 31st है, दारू पीना किसने बोल के रखा है यार? किसने बोला है दारू पीना चाहिए? किसी गीता, कुरान, क्रिश्चियनिटी में कहीं लिखा है कि दारू पियो और सेलिब्रेट करो नया साल इस प्रकार और ड्राइव करो और मर जाओ, ऊपर सेलिब्रेट करेंगे? ऐसा किसी ने लिखा है क्या? I don't understand this. Not only that, there are so many people, they go to beaches and all. From one family, I think 4 people drowned. In Tamil Nadu, I think. आज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो तुम लोग। I forgot to bring the copy क्योंकि मैंने घर पे ही पढ़ा और मेरा बेटा, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी 31st को बाहर खाना खाने गए थे, तो बाहर जो रोल वगैरह मैगी वगैरह मिलते हैं ना, वो कचरा खाया हम लोगों ने। एंड उसने कुछ तो कोल्ड ड्रिंक पिया था, कुछ था, आई डोंट नो, उसका कुछ इंग्लिश नाम है, कॉकटेल। हाँ कुछ था ऐसे, तो उसने पिया and it cost that drink cost me 190 मॉकटेल। और 190 तो थी। आज उसको मैं 1000 रुपया कैश लेके आया हूँ कि बेटा तू क्लिनिक में चला जा, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल लेके जाना है जो कि 9 बजे का है। 190 का कोल्ड ड्रिंक 1000 रुपया मैं दे के आया हूँ, अभी पता नहीं उसमें से कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, या ऊपर से मुझे स्कैन करके भेजना पड़ेगा और पैसा शॉप को, आई डोंट नो। पॉइंट इज, ये बोला किसने यार? चलो, दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चैनल समझ में आया? अभी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या? मेथड वुड बी ईदर वर्बल और नॉन वर्बल। राइट नाउ व्हिच मेथड इज बीइंग यूज्ड? वर्बल। वर्बल में 2 चीजें होती हैं, एक ओरल और दूसरी रिटर्न। एक ओरल और दूसरी रिटर्न। जैसे कि नो पार्किंग का बोर्ड हम लोगों ने देखते हैं, तो हम लोग पार्किंग करते हैं क्या? नहीं करते। अगर वहां पे लिखा फाइन फॉर पार्किंग, तो पार्किंग करेंगे क्या वहां पे? क्यों नहीं करेंगे? फाइन लगेगा। नहीं, इट्स फाइन टू पार्क, फाइन फॉर पार्किंग। यू अंडरस्टूड दैट? इट्स कंफ्यूजिंग। और हमारी इंडियन मेंटालिटी तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे कचरा डालना मना है, उधर ही डालेंगे। हाँ, यहाँ पे थूकना मना है, उधर ही रखेंगे। तो हम लोगों का जो वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं लेकर आ रहा है, राइट? एक पुणेरी पार्टी होती, त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं की पार्किंग केल्यास दंड आकारण्यात येईल, तो फुल पार्किंग करायचे लोक। नंतर एकाने काय केलं, 2 तासाच्या पार्किंगचे 200 रुपये या पार्किंग करा। आजूबाजूला कोणीच पार्किंग करत नव्हतं। रीजन? पैसे का घालायचे? सामने वाले को मैसेज कैसे कोड करना है ये पता चला, क्योंकि जो रिसीवर्स है वो काफी केयरलेस है। इंडियन मेंटालिटी, गेट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो मेथड समझ में आया? इधर वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी, जैसे कि आप लोग बाइक चला रहे हो और सिटी सुनाई दी, अपने ट्रैफिक हाउस है, क्या करेंगे हम? भागेंगे। वो सिटी भागने के लिए होती है क्या? लेकिन रुक बेटा, नहीं तो स्कैन करके ई चला, राइट? या फिर तू रॉन्ग साइड से आ रहा है तो एक्सीडेंट कर देगा, साइड से चल। या फिर रेड लाइट लग रहा है तो रुक, नहीं तो ठोक देगा किसी को या मर जाएगा। और
ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई मर गया या डूब गया, क्योंकि बेचारे को उन्हीं को लेके जाना पड़ता है बॉडी को, बहुत बहुत कसरत होती है, राइट? आसान नहीं होता है। तुम्हारे मम्मी डैडी आएंगे क्या वहां पे, और आएंगे तो वो क्या शक्तिमान है क्या, 2 सेकंड में वहां पे, हाँ ये मेरा बेटा है चलो मैं उठा के, ऐसा होता है क्या? तो तब तक तो तुम लोगों को रास्ते पर ही रख दिया तो तुम लोग वहीं पे मर जाओगे, थोड़ी सी भी दम हुआ तो पुलिस वाले ही मोस्टली रहते हैं या जो पासर बाय रहते हैं उनको लेके जाना पड़ता है। इसलिए या तो विस्लिंग होगा या साउंड होगा या हिसिंग साउंड होगा, हम लोग भी करते हैं ना हिसिंग साउंड, कुछ ऑटो वाले तो ऐसे करते हैं, ये भी साउंड होता है, कुत्ते को बुला रहा है या किसी पैसेंजर को बुला रहा है पता नहीं चलता। तो रॉन्ग मेथड इज यूज्ड, wrong method is used and communication will not be successful। क्या होगा तो escalation होगा, हाथापाई। मैसेज तो समझ में आ गया होगा। Abstract idea converted into a concrete code, that is message। Nobody will ask you, but you should know this। Then comes encoding। Encoding in the sense converting abstract idea into the code the receiver is comfortable with। मतलब समझे? हमारे दिमाग की आइडिया या थॉट इस प्रकार कोड करना कि सामने वाले को वो समझे। छोटा बच्चा है तो आजा मेरा बेटा आजा आजा, ऐसे करते ना अपन, नॉन वर्बल मोस्टली, राइट? और अगर बड़ा बच्चा है तो ऐसे करेंगे कि कोई नहीं। सो डिपेंडिंग ओवर द रिसीवर यू change the code and that is encoding। Nobody is asked you, but when you explain your example with the help of any real lifetime example, you have to tell me all these things, that will make me understand that you have understood communication process and site, otherwise I will not accept your performance। Is that clear? Yes. And I know that I am consuming more of your time because you stupid people did not watch that YouTube video। I'm not promoting my channel obviously, right? I'm not। हमारे कुछ टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ क्लास में, मैं बस YouTube वीडियो बना के बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोग देख लो। स्टूपिड लोग होते हैं, उनकी स्टूपिड बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको वो करना है। एंड मोर ओवर 24/7 वो वीडियो आपके पास है। आप राम पाटिल को कहीं से भी पॉज कर सकते हो, रुको, रिपीट, एक बार और रिपीट कर सकते हो, या आप ट्राई करके देखो। एक बार मैं शायद बोल दूं, दूसरी बार मैं घर चला जाऊंगा। Yes or no? Alright. So again, I'm not glorifying any YouTube lecture, so don't take me otherwise। अगला है रिसीवर। अभी ये काम एनकोडिंग का हो गया, बोल दिया या लिख दिया, तो फिर किसरे the ball goes in the court of the receiver। And who is the receiver right now? तुम लोग receiver। मैंने अगर आपको ये सवाल पूछा कि हैव यू अंडरस्टूड सो फार, हम लोग यूनानिमसली ऐसे होते हैं हाँ सर। और अगर मेरा दूसरा WH क्वेश्चन आता है, टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, नो सर, कुछ भी नहीं सर। सो इट शोस कि आप लोगों ने लिसनिंग किया ही नहीं, आप लोग जस्ट एक्टिंग कर रहे हो सुनने की। हाँ सर, गुड सर, वेरी गुड सर, पहला लेक्चर है सर, आप तो बहुत चौके छक्के लगा रहे हो सर आज, पूरा 1-2 महीने का जो भी बढ़ा से निकाल नहीं, घर पे तो कोई आपकी सुनता नहीं। You are trying to speak a lot because of that। Get that? So receiver का काम क्या होता है? पहले तो रिसीव करना और 100% कंसंट्रेशन के साथ। अगर आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ रिसीव नहीं किया कोई भी मैसेज तो क्या होगा? डिकोड नहीं कर पाएंगे। डिकोड करना मतलब क्या है? समझ ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। देखो अभी ये डिकोडिंग भी है ना, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आप किसने मैसेज भेजा है उस पर डिपेंड करता है। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे को आंख मारी, कम्युनिकेशन हो गया, उसको समझ में आएगा। मैं एक थर्ड पार्टी हूं, मैं देख रहा हूं कि हाँ यार इसने इसको आंख मारी, क्यों मारी, मेरे को नहीं समझ में आएगा। रीजन जो केमिस्ट्री है दोनों दोस्तों के बीच में कि आज खेलने जाना है, आज लेक्चर बंक करने जाना है, खत्म। उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया, मुझे एज अ थर्ड पर्सन समझ में नहीं आएगा। तो डिकोडिंग करना उस बंदे का काम है जिसके लिए वो मैसेज होता है। और अगर उसने
उसी प्रकार डिकोड कर लिया या उसी प्रकार समझ लिया एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल. कम्युनिकेशन प्रोसेस मे बी कंप्लीट बट इट मे नॉट बी सक्सेसफुल. कैसे? इमेजिन आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अभी तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है 2 पेपर लिखने का, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, आपके सामने मंथन बैठा है जो कि सबसे टैलेंटेड बच्चा है, जैसे इमेजिन आपको पता है कि उससे आपको मदद मिल सकती है, पहले से ही डिसाइड कर लिया कि देख मैथ्स को मैं तुझे मदद करूंगा, इंग्लिश में तू मुझे मदद करना, राइट? आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुका है. समझो आपको मैथ्स की कुछ सम या कुछ फार्मूला नहीं आ रहा है, तो आप मंथन को कैसे पूछोगे? डायरेक्टली पूछेंगे, अरे मंथन वो sin cos tan थीटा बता रहे, ऐसे पूछोगे? क्यों नहीं पूछोगे वैसे? सुपरवाइजर. एग्जाम हॉल है, the scenario, the context is different, you have the restrictions. और अगर मेरे जैसा कोई सुपरवाइजर है तो कॉपी केस. तो और प्रेशर रहेगा. अरे ये 1 नंबर का खड़ूस है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन आंसर तो चाहिए, नहीं तो 5 मार्क्स चले जाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे? कोड अपना एक कोड होता है, नॉइस. कभी कभी दूसरे का दूसरा शार्पनर. तो समझ में आ गया. या फिर पीछे से ऐसे टच करने का उसको, और 3 बार टच किया मतलब तीसरे सवाल का जवाब. तो वो बंदा क्या करेगा? ये ले दे लिख, मैं बोलता हूँ, ऐसे बोलेगा. क्या करेगा वो? इसको एक्सपीरियंस है. ये देख भाई मैंने ये लिखा है. कम्युनिकेशन हो गया ना. राम पाटिल जो रिलेशन कर रहा है उसको पता है क्योंकि केमिस्ट्री और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी है? सेंडर एंड रिसीवर. तो जिस प्रकार उसने टच किया या टैप किया, उस नॉइज से सामने वाले को समझ में आ गया कि क्या है मैसेज. कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल. बिसाइड्स कंप्लीट, इट इज सक्सेसफुल. और हमें हमेशा कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने का ही प्रयास करना है, तब जाके हम लोग अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे या अच्छे इंडिविजुअल बनेंगे. शादी होने के बाद मोस्टली बॉयज आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होने की गारंटी बहुत कम होती है. आस्क मी. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. रियल लाइफ एग्जाम. मैंने दिया है, वीडियो में भी दिया है, सॉर्ट का. कैन यू हेल्प दिस हस्बैंड टू गेट सॉर्ट? बेचारा खाने बैठता है, सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं है, बीवी साइड में बैठी है, लकड़ी लेके नहीं, बस बैठी है. एंड हर बीवी की यही अपेक्षा होती है कि पहला मॉर्सल लेने के बाद उसके हस्बैंड ने ये बोलना चाहिए, वाह क्या सब्जी बनी है, क्या सब्जी बनी है. ये भी अगर हो तो भी एक्टिंग करना है, क्या सब्जी बनी है, राइट? अभी ये बंदे को विदाउट सॉल्ट तो वो सब्जी खाने से रहा, तो सब्जी तो चाहिए, सॉल्ट तो चाहिए उसे. तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पिकल मिलेगा क्या? कैन आई गेट अ पीस ऑफ पिकल प्लीज? आंसर क्या आना चाहिए बीवी का? श्योर. यस और नो, राइट? बीवी क्या बोलती है? अच्छा, तो सब्जी अच्छी नहीं बनी है. और बीवी खुश भी होती है कि ये बंदे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे नमक मांगे. अभी मुझे ये सिनेरियो बताओ कि बीवी को बिना ऑफेंड किए वो बंदा नमक कैसे मांगे? अब ये स्टोरी अपनी मम्मी को सुनाना नहीं है, मोस्टली गर्ल्स खुद तुम उठ लोग के अपने जाके डैडी लेके के साथ शेयर कर सकते हो. बोलेंगे यार हमारा मसीहा तुम्हारा राम पाटिल है. बोलो. खुद उठ के जाके लेने. ओके गुड. एक्शन. ऑलराइट. और सोच के रखो, काम आएगा लाइफ में. और मेरे पास रेडीमेड आंसर नहीं है. मैं तो तुम लोगों से जो यंग टैलेंटेड लोग हैं उनसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ कि मैं इंप्लीमेंट करूँ मेरे घर में. या आस्क योर डैड्स. लेकिन जब मम्मी अराउंड नहीं है माझे तब. पप्पा डेंजर डायरेक्ट. Is that clear? Is that clear? Okay. So जरूरत नहीं मतलब. डिकोडिंग किसका काम है? रिसीवर. रिसीवर का. और रिसीवर का सबसे बढ़िया एंड लास्ट काम होता है फीडबैक.
फीडबॅक मतलब रिप्लाय काय समजलं ते सांग. हा, रिप्लाय फक्त सांगणंच का, फक्त बोलूनच फीडबॅक देऊ शकतो का आपण? ऍक्शन करून. जसं मी सांगितलं, ओके मिस्टर नादिर, नाही समजलं, ऍक्शन घे. ना मैंने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ यस कंप्लीट एज वेल एज Successful. सक्सेसफुल. तो नॉट ओनली वर्ड्स, इवन एक्शंस आल्सो. जैसे कि मैंने अगर बोला लुक देयर, तो हम लोग उधर देखें, एक्शन से भी हमारा काम हो गया. कीप साइलेंस एंड यू मेंटेन साइलेंस. सो बाय मेंटेनिंग साइलेंस आल्सो काम बन गया. फीडबैक दे दिया. देखो फीडबैक के 3 प्रकार, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड नो फीडबैक. किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल होने में जो सही फीडबैक चाहिए वो होता है इंटेंडेड फीडबैक. और ये 4th जो टाइप है ना, उसके लिए हमने काम करना है एज अ प्रोफेशनल. अब ये इंटेंडेड फीडबैक क्या है मैं बताता हूँ. मैंने अगर समझो किसी को बोला कि नादिर हमेशा अपसेंट रहता है. शब्द क्या है मेरे? नादिर नादिर हमेशा क्लास में अपसेंट रहता है. लेकिन जिन सबको पता है कि नादिर सबसे ज्यादा रेगुलर बच्चा है, वो बिलीव करेंगे क्या? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं टॉन्ट कर रहा हूँ या मैं किसी और को फोकस में लाना चाहता हूँ कि जो कभी लेक्चर में नहीं आता. सो अगर आप वो समझोगे जो मुझे समझाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर माय सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, आप इंटेंडेड फीडबैक दे रहे हैं. इंटेंडेड बाय whom? यू सेंडर. टेक द सेम सिनेरियो. एक हस्बैंड बेचारा खाना खा रहा है, सब्जी में नमक कम है, उसने बोला कि मुझे पिकल चाहिए. अगर उस वक्त उसकी बीवी सीधे नमक लेकर आती है और उसके साथ पिकल भी लेकर आती है, दैट इज इंटेंडेड फीडबैक. यस और नो? वॉइस. ओके. पॉजिटिव फीडबैक मतलब कैन आई गेट अ पीस ऑफ पिकल प्लीज? तो पॉजिटिव फीडबैक का यस यू कैन. लेकिन एक्चुअली लाना है ना, सिर्फ बोल दिया, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक नो आई वोंट. जैसे मैंने बोला नादिर जरा वो किताब लेकर आओगे? नहीं सर मेरे पैर में दर्द है. नेगेटिव फीडबैक. एंड नो फीडबैक मतलब क्या? नो रिस्पॉन्स. बहुत बार तुम लोगों को मैं सवाल पूछ, हैव यू अंडरस्टूड? 1-2% तो ऐसे ही होते हैं. कुछ लोग तो एक्टिंग करते हैं यस सर, कुछ लोग नो सर. तो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, नो फीडबैक भी आ गया. लेकिन इंटेंडेड फीडबैक क्या होता है हर टीचर का? हैव यू अंडरस्टूड मतलब रिपीट व्हाट आई टॉट, एंड इफ यू कैन रिपीट, इंटेंडेड फीडबैक इज देयर. तो हमें किसके लिए काम करना है? फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, कहीं पे भी आपको इंटेंडेड फीडबैक पे काम करना है. जैसे ही फीडबैक दिया जाता है ना, रोल चेंज हो जाते हैं. मतलब सेंडर हो जाता है. रिसीवर सेंडर बन जाता है. और इसीलिए ये साइकिल होता है. देखो मैंने एरोस दिखाए दोनों, ये कंटिन्यू चलता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइकिल. इट इज रोटेशनल. इट इज रोटेशनल. तो आपको दिखाना पड़ता है. और समझो कभी कभी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत होती है बैरियर. और दिक्कत कहीं पे भी हो सकती है. सेंडर के साथ हो सकती है. समझो सेंडर बह रहा है, तो बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा. रिसीवर के साथ बोलेगा क्या बोला? बाहर है. बह रहा है तो बोल पाएगा ना? हाँ. नहीं नहीं, बहरे लोग बोल नहीं पाते, वो गूंगे होते हैं. अगर बाय बर्थ आप डेफ हो, आपकी स्पीच मैकेनिज्म भले ही नॉर्मल हो, आप बोल नहीं सकते. पूछो क्यों? सुने ही नहीं कुछ. उसको पता ही नहीं. घड़ी, अरे साउंड ही नहीं है, बम हो तो उसको खुद पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है. हाँ, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन वो ये समझ सकता है कि ये चीज यहाँ पे टंगी जाती है और उसमें ऐसा कुछ तो देखना पड़ता है.
ये वो समझ सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि घड़ी एंड टाइम, क्योंकि वो गूंगा इसलिए है क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स गेट इट। तो सेंडर के साथ या सेंडर तोतला है या आप लोगों ने गलत ग्रामर का इस्तेमाल कर लिया। आई एम हंग्री की जगह पे आई वाज हंग्री बोल दिया। कम्युनिकेशन होगा क्या? मम्मी खाना देगी क्या आपको? नहीं होगी। पूरा फेल, नो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, राइट? तो सेंडर के साथ भी हो सकता है या फिर रिसीवर के साथ हो सकता है। रिसीवर तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बॉडी इज प्रेजेंट एंड माइंड इज एब्सेंट। ये हस्बैंड को ही ले लो, चाहिए था उसको नमक, लेकिन डर था तो सीधे सीधे बोला, पाया क्या? पिकल बोला, और मिला क्या उसको? पिकल, क्योंकि एज यूजुअल वाइफ इज एंग्री। तो एंगर एंड फियर बोथ ऑफ देम आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तुम लोग बॉडी इज प्रेजेंट माइंड इज एब्सेंट, साइकोलॉजिकल बैरियर। इनअटेंशन, सो इनअटेंशन इज आल्सो साइकोलॉजिकल बैरियर which hinders or obstructs the smooth flow of communication. देखो मेरी नेक पेन हो रही है, इतनी मैंने गूगल किया, मेरे पास 2-3 किताबें पढ़ी थी, वो पढ़ी, मेरा कुछ कॉमन सेंस लगाया, मेरा हमेशा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो लगाया, तब जाके मैं ये लेक्चर ले पा रहा हूँ। और हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10वीं पास हुए बच्चे यहाँ पे आके कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड साइकिल विथ लाइव एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एक्सप्लेन करें। पॉसिबल है क्या? मैंने 3 किताबें पढ़ी, गूगल किया, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है एक्सपोजर है वो लगाया, तब जाके मैं ये सेशन ले पा रहा हूँ। एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? उठो और शुरू हो जाओ। और वो दूसरा एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हर प्रैक्टिकल में हम आपको समझाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। अबे टाइम है क्या? अभी देखो बहुत सारे डेज सेलिब्रेशन होगा, फिर आपका स्पोर्ट्स आएगा, फिर गैदरिंग आएगा, फिर कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। कॉलेज में तुम्हें पता है चालू ही रहता है, और हमारा मन नहीं लगता दोपहर के बाद। एक बार खाना खा लिया, मोबाइल फोन हमारे हाथ में आ गया विथ 100% चार्जिंग। हम किसी के बाप के नहीं होते, खुद के बाप के नहीं होते। तो मैंने देखा है क्लासरूम में आजकल आवाज नहीं आती, मुझे पता चल जाता है कि मोबाइल पीरियड शुरू हो गया है। यस, मैं देखता हूँ, मैं हमेशा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, और चेहरे से पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। ये वो क्या देख रहा है वो भी पता चल जाता है, चेहरा सब कुछ बोल देता है। Get back. That is not the topic of discussion. I am talking about barrier, right? तो ये पूरा फेनोमेनन इस प्रकार है। अभी ये जो चैनल वगैरह है ना, इसका सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बैरियर्स आ सकती है। कैसे? समझो आपका नेटवर्क ही नहीं है या चला गया बीच में, तो क्या होता है हमारा प्रॉब्लम? या मैं 300 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ और बीच में ही मेरा माइक फंक्शन करना बंद हो गया, तो disconnected. so these physical problems are also available there, technical issues are also available there which hinder. तो तुम्हें जब भी आप लोग कभी भी अपने ऑफिस में कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, कुछ बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, या ट्रेनिंग सेशन आपने रखा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि एकॉस्टिक्स अच्छा है। एक कॉर्डलेस माइक नहीं, 3-4 कॉर्डलेस माइक्स है, 2 माइक्स ऑडियंस में रहेंगे, 2-3 एक्सपर्ट के पास रहेंगे, और सबका कनेक्शन है, उनकी बैटरी वगैरह सब अच्छे से। ये सब आपने केयर करना है, तब जाके वो कम्युनिकेशन प्रोसेस और ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। बहुत बार हमारे रूम नंबर 121 में हम लोग प्रोग्राम लेते हैं, वो माइक सिस्टम काम करना बंद कर देता है, वो बेचारा कोई पोएम बोल रहा है, मित्र मध्ये समझ लो काय झालं? कम्युनिकेशन प्रोसेस 100% खोला और सब लोग बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे। वो बंदा काम कर रहा था, वो पोम बोल रहा था, ये बस आराम से बैठ के निकम में वहां पे सुन रहे थे, ग्लिच हो गया, तो उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने पूरी येलो टीथ दिखाएंगे। मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे बहुत दिमाग सटकता है, क्योंकि I was always on the dance. I loved anchoring. I was always a competitor. I was also a spokesperson of one of the political parties during my college days. तो मुझे पता है
स्टेज पे कैसे हालत होती है, और बहुत सारी ऑडियंस अगर आपके सामने है तो हर एक की पतलून गिरी होती है, इसलिए लोग नीचे बैठते हैं। और वो सामने जो परफॉर्म कर रहा है उससे अगर कुछ गलती हो गई, हाँ 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 अच्छा वो मैं नहीं गया, स्टूपिड, हैव टू स्पीक, गेट बैक। समझ में आ रहा है बात? तो बैरियर कहीं पे भी हो सकता है। अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें से आपको अभी के अभी एक ट्राई करना है, तब मैं एंड करूंगा। एक मूवी है कम होना प्यार है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस मूवी? Yes. ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल। अब ये मूवी मुझे सबसे ज्यादा इसलिए याद है क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे और ये मूवी लगी थी, और इट्स अ डेब्यूटेंट मूवी ऑफ बोथ ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल। एंड अमीषा पटेल वाज सो प्रिटी दैट टाइम, हमारे जमाने की एक्ट्रेस है, तुम्हारे मम्मी जैसी है, इसलिए कुछ मत सोच। उसमें एक सॉन्ग है जिसमें वो क्या करती है ना, अपना जो स्कार्फ है ऐसा लेके दौड़ती हुई दिखाई देती है स्क्रीन पे। तो हम में से 2-3 बंदे क्या करते हैं, जब वो दौड़ती हुई आती है ना तो ये उड़ जाते हैं और वो लेने की इसी एक्शन करते हैं। कीड़े बहुत होते हैं कॉलेज के बच्चों। तो क्या हुआ, पीछे वाले लोगों ने 2-3 गाली दे दिया, नीचे बैठ, और बिप वाली गाली दिया। अभी कॉलेज के लड़के और उनको 2 बिप वाली गाली दे दी तो इनके पास तो 10 बिप है। तो हम भी शुरू हो गए, तो झगड़ा एस्केलेट हुआ, हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, मूवी भी रुक गई। फिर झगड़ा खत्म हो गया, फिर से मूवी रीस्टार्ट हो गई क्योंकि बाकी लोग चिल्लाने लगे ना, हमने पैसे दिए। एंड द टिकट कॉस्ट वाज 6 रुपीस एंड 10 रुपीस दोस डेज। तो फिर से वो शुरू हो गया। तो उस मूवी में एक सीन ऐसा है कि जब ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर क्रू एंड दे लैंड ऑन आइसोलेटेड आइलैंड, यू नो दैट। तो वो ऐसे आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं है। अभी मैसेज दे तो दे कैसे, कौन सी मेथड इस्तेमाल करें? लड़का और लड़की दोनों भी एक आइसोलेटेड आइलैंड में है, वेरी लड़की तो प्यार में पागल हो गई है लड़के के, लेकिन लड़का इस कंसर्न कि इस आइलैंड से हम लोग बाहर कैसे जाए क्योंकि पानी नहीं है, पीने को, खाने को नहीं है कुछ भी, राइट? तो लड़का अकल लगाता है, दिमाग लगाता है। हैव यू वॉच्ड दैट मूवी? क्या करता है फिर वो? अपना मैसेज कैसे पास करता है कि हम लोग यहाँ पे हैं? याद नहीं अभी। अच्छा, उसने कैसे पास करना चाहिए मैसेज? चलो, क्योंकि ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर जाएगा तो उसको पता चलना चाहिए, स्टिक से हेल्प, आग लगानी चाहिए, कुछ नहीं है उसके पास। एंड आग लगाना मतलब क्या? छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा सिद्धी जोहरच्या बेड्यातनं निघाले, बाहेर पडले आणि रायगडावर जाऊन पोहोचले, त्यावेळेस त्यांनी बाजी प्रभूला सांगितलं होतं की मी रायगडावर गेल्यानंतर तोफेचे आवाज करेल, समजून जायचं की मी सुखरूप पोहोचलो। तोपर्यंत बाजी प्रभूंनी खिंड लढवली आणि जेव्हा तोफेचे आवाज आले तेव्हा त्यांनी आपला प्राण त्यागला. So that is also communication. That noise played the role of a channel and method was non-verbal. समजलं? इवन त्यांनी गवताच्या गंजी पण पेटवायचे की मी इथे आहे असं दाखवण्यासाठी किंवा सुरक्षित आहे असं दाखवण्यासाठी ते गवताच्या गंजी पण पेटवायच्या आणि त्या धुराने समजायचं लोकांना, कारण त्यावेळेस काही असं नव्हतं कम्युनिकेशन किंवा मारली गाडीला की हा तुम्ही पोहोचले का, बरोबर मी निघतो आता, असं नव्हतं त्यावेळेस, राईट? आणि रस्तेही नव्हते, ऑफकोर्स आता पण नाहीये कारण भ्रष्टाचाराने सगळे खाल्लेत, तो वाद वेगळा. पॉइंट इज कसं? चला, ऋतिक रोशन आणि अमीषा पटेलला त्या आयसोलेटेड आयलँड मधून बाहेर काढायचं, काय करा, कसं करा? आग लावणार, तुमच्याकडे काय काडीपेटी वगैरे नाहीये, नो हेल्पचं स्टिकने याच्यावर ग्राउंड बनवणार. हा, हेल्प करेक्ट, की हेल्प मोठं मोठं बनवणार जेणेकरून वरतून मिळणार. दिस इज प्रॉपर. व्हॉट एल्स? फूड शोधणार का थोड्या टाइम पर्यंत सर्वाइव्ह करू. येस, नो, आपल्याला मेसेज पास करायचा आहे. तो तिथे झेंडा तयार करतो. आता झेंडा तयार करण्यासाठी कपडे असतात का? असतात. मग तो काय करतो माहितीये का, त्या अमीषा पटेलने जे काही स्कार्फ घातलेला असतो तो असा ओढतो आणि तिला वाटलं की ह्याच्या डोक्यातले आता विचार खराब झाले आणि ती अशी बघते त्याच्याकडे, तोपर्यंत त्याने तो स्कार्फ घेतलेला असतो, ती त्याचा झेंडा बनवलेला असतो आणि इरेक्ट केलेला असतो आणि एक 5-10 मिनिटांनी त्याला लगेच मदत येते. So availability of the channel, that also matters when you select a channel. कळलं? तो आपको जब आप इंजीनियर बनोगे ये सब चीजें आपको पता करनी चाहिए. आप किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे साइट चल रहा है, आपको नेटवर्क नहीं है, तो मैसेज पास करे तो पहले कैसे?
आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, कौन सा चैनल इस्तेमाल करें, कौन सा मीडियम इस्तेमाल करें, all these things you should take into consideration when you become a professional. From that point of view, we have to learn this particular practical. Is that clear? Thank you so much.